Okay, good morning, everyone. सबको सुप्रभात। How are all of you doing? आप लोग कैसे हैं? Good. You're excited? This is your last week. क्या आप उत्सुक हैं कि आपका अंतिम सप्ताह है? Okay. Aren't you happy to finish and go home? क्या आप खुश नहीं है कि आप अब खत्म करके समाप्त करके अब घर जाएंगे? Not happy to go. You're not missing your home. क्या आपको अपने घर की याद नहीं आ रही है? Not missing. Okay. Anyway, so this is the last week, and then on Sunday will be your graduation. और ये अंतिम सप्ताह है और रविवार का आप स्नातक बनेंगे इस पाठ्यक्रम की। And we do have full-time Bible. I'm sure Pastor Nancy would have told you there is full-time Bible college. और हमारे जो पूरे समय का बाइबल कॉलेज भी है, It'll be starting in August. और यह अगस्त महीने में शुरू होगा। So those who want to attend full-time, you can. और अगर आप चाहते हैं कि पूरे समय आप बाइबल का पाठ का अध्ययन करने के लिए तो आप कर सकते हैं। But that will be in English only, so there's no Hindi translation. तो वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगा, उसमें हिंदी का कोई अनुवाद नहीं होगा। All right, so the morning sessions we will be talking about the end times. और इस सुबह के सत्र में हम लोग बात करेंगे अंतिम समय के बारे में। So all of you got your notes, English or Hindi? सबको आपको इंग्लिश हिंदी की पुस्तकें मिल गई हैं? Yeah, got it, right? Okay. So let's pray and then we will start. आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे। Father, we thank you for this new week. प्रभु जी, इस नए सप्ताह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for all the students here. और जितने भी छात्र यहाँ पे उसके लिए धन्यवाद करते हैं। Those who will join us online. और जो हमें ऑनलाइन जुड़ेंगे उसके भी। Lord, as we study your word, परमेश्वर, जैसे कि आपके वचन से हम अध्ययन करेंगे, we invite the Holy Spirit. प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं to be our teacher, कि हमारे शिक्षक बने आप, to help us understand, हमें समझने के लिए, to give us, to lead us into all the truths, और हर एक प्रकार के सच्चाई में हमारी अगुवाई करने के लिए। may we understand everything. और हमें मदद कीजिए कि हम सब कुछ समझ पाएं। And Lord, may our lives live out your word. ताकि आपके वचन पे हम जी पाएं। And may we be a blessing to many people. और हम आशीष बने बहुत तेरे के लिए। We thank you, Father. पिता, आपका धन्यवाद करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। Amen. All right, so in the Bible, God has revealed his plan. तो बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी योजनाएं बना के रखी हैं। The things that he has planned from the beginning. जो योजनाएं जो उन्होंने शुरुआत से रखी है। So God knows the end from the beginning. परमेश्वर अंत को जानता है शुरुआत से। And little by little he has revealed it to us in the scriptures. और थोड़ा थोड़ा करके उसने हमें बताया है धर्मशास्त्रों में। Different prophets, अलग अलग भविष्यवक्ता, apostles, प्रेरित, they have written what God has revealed to them. और ये उन्होंने लिखा है कि क्या परमेश्वर ने उनको बताया है। And when we put it all together, और जब हम सब कुछ एक साथ रखते हैं, then we get an understanding, we get a picture तो हमको of God's plan. तो हम यह जान पाते हैं, यह चित्र पाते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है। Some of the things have already happened. कुछ चीजें पहले से हो गई हैं। And then there are many things that are yet to happen. और बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी होनी बाकी हैं। So the study of the end times, तो अंत समय का जो अध्ययन है, is a study of all the things that are yet to come. तो वह उस बात का अध्ययन है जो अभी भी होने वाला है। Things that are now and into the future.
और जो बातें अभी की हैं और भविष्य की हैं। So the question we want to ask is, why study about things that are going to come? तो इस प्रश्न को हम पूछना चाहते होंगे कि क्यों उन बातों का अध्ययन करना जो अभी आने वाली है, Why do we need to study about Bible prophecy? और क्यों हमको बाइबल के भविष्यवाणियों के बारे में जानना है। So we've listed here in the first lesson और पहले जो पाठ है उसमें हमने उसकी सूची दी है, some reasons why. कुछ कारण हो कि क्यों। So the first reason तो पहला कारण है is that God has revealed his plan to us and he wants us to discover and understand it. परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को हमको बता दिया है और वो चाहता है कि हम उसको खोजें और उसको समझें। We shouldn't live like, oh, I don't know what God is doing. और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं जानता परमेश्वर क्या कर रहे हैं, I don't know what he's going to do. और हम नहीं जानते कि वो क्या करने वाले हैं। No, he's revealed it to us. वो हमें बता दिए हैं, So we should study तो हमको अध्ययन करना है and understand his plan. और उसके योजनाओं को समझना है। The book of Revelation opens with these amazing statements in Revelation chapter 1, verses 1, 2, and 3. और प्रकाशित वाक्य एक से 3 को में प्रकाशित वाक्य परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत रीति से खुलता है। In verse 3, he says, "Blessed are those who hear the words of this prophecy and who keep those things." और वचन 3 में कहता है कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। So, concerning prophecy, he says, if you read it and you follow it, you are blessed. और भविष्यवाणी को लेकर वो कहते हैं कि अगर आप इसको पढ़ेंगे और इसका पालन करेंगे तो आप धन्य हैं। Some people say, "Oh, book of Revelation very difficult. I don't want to read it." तो कुछ में से आप में से कई कह सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य किताब बहुत कठिन है, मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता। No, Bible is saying you are blessed if you read it लेकिन and you keep it. तो बाइबल बताती है कि आप धन्य हैं अगर इसको आप पालन करेंगे और इसको पढ़ेंगे। Amen. आमीन। So it's a good thing for us to study about Bible prophecy and understand those things. और ये हमारे लिए बहुत भली बात है कि हम बाइबल के भविष्यवाणियों को पढ़ें और उसको समझें। Second reason दूसरा कारण is so that God has revealed these things so that we can be watchful and we can live properly. और परमेश्वर ने हमें इस बातों को इसलिए सिखाया है कि हम सतर्क रहें और ध्यान से जिए, सचेत होकर जिए। When Paul was writing to the Romans in Romans chapter 13 verses 11 to 14, जब रोमियो की किताब में पौलुस लिख रहा है रोमियो के 13 का 1 से 11 से 14 में, he tells them, and do this knowing the time. और ऐसा करने से तुम समय को जान पाओगे। Romans 13 verse 11. और रोमियो का 13 का 11, That means you understand the times in which you are living, आप उस समय को समझिए जिसमें आप जी रहे हैं, and then you live. तब जाके उसके अनुसार जिए। आप Don't live like those who are asleep. ऐसा लोगों के साथ मत जिए जो सोए हुए हैं। It's not time to sleep. अभी समय नहीं है सोने का, It's time to be awake अभी जगे रहने का समय है, because the time is drawing near. क्योंकि वह समय निकट आ रहा है। So when we understand how close we are to the coming of the Lord, और जब हम समझ जाते हैं कि कितने करीब हैं परमेश्वर के आगमन के, then we begin to live ready for his return. तो हम अपने आप को तैयार करते हैं और उनके आने के लिए हम उसके अनुसार जीते। No, we don't say, the Lord will come maybe after 200 years. Why I should worry? आप ये कह सकते हैं कि अरे परमेश्वर तो हो सकता है 200 साल के बाद आएंगे, मुझे चिंता करने की क्यों जरूरत है। No, you understand that we're very close. नहीं, आप समझिए कि आप बहुत निकट हैं, He could come anytime. वो कभी भी आ सकते हैं। So we have to be ready anytime. तो हमको भी तैयार रहना है कभी भी। A third reason तीसरा कारण why we have to study the scriptures. कैसे हमको धर्मशास्त्र का अध्ययन करना है, क्यों करना है। You're following me in the notes, right? आप मुझे पुस्तिकाओं में मेरे साथ जा रहे हैं ना। Yeah, we're just going through these things. Is because
uh, that God wants us to be a people of hope. He wants us to be a people who would look ahead to the things that are yet to come. और हम परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस बातों के लोग बने जो आगे देखें और उन बातों की बाट जो है जो अभी आने वाली है। So sometimes in life, we will face difficult things. तो कभी कभी जीवन में हमको कुछ कठिनाइयां होंगी। We lose our loved ones, they pass away and they go. हमारे प्रियजन वो हमसे बिछड़ जाते हैं, वे चले जाते हैं। But because we know what the future holds, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए भविष्य में क्या रखा है, we are people of hope. तो हम लोग उस आशा के लोग हैं। Death is not the end. और मृत्यु ही अंत नहीं है। Paul says the sufferings of this world are nothing compared to the glory which will be revealed to us. और पौलुस कहता है कि इस संसार की जो पीड़ा है अगर तुलना की जाए जो स्वर्ग में होगी उससे कुछ भी नहीं है। Amen. The glory that God is going to reveal, he says, that is so great that our present sufferings are nothing compared to those. तो वो कहता है कि जो स्वर्ग की महिमा है वो इतना महान है, इतना बड़ा है कि हमारे जो वर्तमान की पीड़ा है उसके सामने कुछ नहीं। And number 4, चौथा कारण is so that we know that God is redeeming everything to himself, and in the end Jesus comes triumphant. और परमेश्वर उसको हमें तैयार कर रहा है और अंत में यीशु विजयी होकर आएगा। The kingdoms of this world will become the kingdoms of our Lord and his Christ. और इस संसार के राज्य परमेश्वर और उसके और मसीह के राज्य बन जाएंगे। Amen. आमीन। We know that हम उसको जानते हैं in the end Christ is Lord and triumphant over everything. कि अंत में परमेश्वर ही मसीह ही प्रभु होगा और सब बातों पर विजयी ठहरेगा। So God wants us to know that. प्रभु चाहते हैं कि हम उसको जानें। Even death will be defeated. मृत्यु को भी हरा दिया जाएगा, It will be taken out. उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। There will be no more death. और कोई मृत्यु होगी ही नहीं। Amen. आमीन। So that is what God is taking us towards. और उस चीज की ओर परमेश्वर हमको ले जा रहे हैं। Number 5, पांचवा नंबर, so that we can be busy with the things he wants us to do, which is to preach the gospel to all the nations. कि हम उन बातों में अपने आप को व्यस्त रखें जो है संसार को, राष्ट्रों को सुसमाचार का प्रचार करना। Right? So we understand. We are very close. हमको यह समझना है कि हम बहुत नजदीक हैं। He has given us one mission. उसने हमको एक कार्य सौंपा है This gospel must go to all the nations. कि यह सुसमाचार हर एक राष्ट्र में जाना चाहिए, And then the end will come. तब जाके अंत आएगा। That is our responsibility. वो हमारी जिम्मेदारी है। And so we know how close we are. So- What is the work left for us to do? तो हम जान पाएंगे कि कितने नजदीक हैं हम और क्या काम जो हमारे सामने अभी बाकी है। Amen. आमीन। And number 6, the last reason और छठा जो अंतिम कारण है is we must preach this message of Bible prophecy. और हमको यह अवश्य है कि जो बाइबल के भविष्यवाणी का संदेश है उसका प्रचार करें So that people will come to faith. ताकि लोग विश्वास में आए। So even this news or what the Bible says about the end times और यह जो समाचार है जो बाइबल बताती है अंत समय के बारे में, is a message we must preach to all the nations. यह वैसा संदेश है जो हमको अवश्य पूरे संसार में, पूरे राष्ट्रों में फैलाना है So that people can come to faith. ताकि लोग विश्वास में आ पाए। Look at what the Apostle Paul wrote. Let us read it. Romans 16, 25 to 27. देखिए जो प्रेरित पौलुस ने रोमियो के 16 के 25 से 27 में लिखा है। Somebody can read it. कोई पढ़ सकता है क्या? Romans 16, 25 to 27. रोमियो 16 25 से लेकर 27 तक। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस वेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से
भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। Amen. आमीन। So notice what Paul says. तो देखिए पौलुस यहाँ पे क्या लिख रहे हैं He says this mystery, कि यह जो रहस्य है it was kept secret, उसको भेद की बात रखी गई थी, but now it has been revealed in the prophetic scriptures. और इसको अभी प्रकाशित किया गया है भविष्यवातक वचनों में और धर्म ग्रंथों में। But for what purpose? लेकिन किस उद्देश्य से? So that it can be made known to all the nations, ताकि जितने भी राष्ट्र हैं उनको ये बात बता दी जाए, so that they can be obedient to the faith. ताकि वे विश्वास में आज्ञाकारी बने। I understand. So God has revealed these things परमेश्वर ने इन बातों का प्रकाशन दिया है in the prophetic scripture, भविष्यवात्मक धर्मशास्त्र में, so that we can tell the nations, ताकि हम राष्ट्रों को बता पाए, and then they can come and become obedient in the faith. ताकि वे आए और विश्वास में आज्ञाकारी हो जाएं। Amen. आमीन। So we need to talk about Bible prophecy. तो हमको बात करने की जरूरत है बाइबल के भविष्यवाणी के बारे में। This is what the Bible has said. यही बाइबल बताती है, And then when people hear it, और they जब will लोग come सुनते हैं and they'll become obedient to faith in Jesus Christ. तब वो जाकर प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आज्ञाकारी हो जाते हैं। Amen. आमीन। So very quickly we saw 6 reasons why we must study Bible prophecy. बहुत जल्दी से हम लोगों ने देखा कि क्यों हमको 6 कारण कि हमको भविष्यवाणी के बारे में पढ़ना जरूरी है। Let's go to lesson number 2. आइए दूसरा पाठ में जाएंगे That the Bible is a prophetic book. कि बाइबल एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। That means God speaks ahead of time, and what we see is many of these things have already been fulfilled. कि परमेश्वर बताते हैं समय से पहले ही, और इसमें से बहुत है जो अभी बातें जो है वो पूरी हो चुकी हैं। How did this happen? यह कैसे हुआ? Peter explains this in 1 Peter 1:10-12 and also in 2 Peter 1:20-21. पहला पत्रस 1 का 10 से 12 में, और उसके बाद दूसरा पत्र 1 का 20 और 21 में बताते हैं He says the Holy Spirit, कि पवित्र आत्मा he moved upon holy men of God, और वह पवित्र लोगों के ऊपर आया and he showed them things that were going to come. और उनको दिखाया वो बातें जो अभी घटने वाली थी। So how did Bible prophecy come? तो कैसे बाइबल की भविष्यवाणी आई? Some man didn't go up in the mountain, sit down and imagine something. और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पहाड़ पे गया, बैठा और किसी बातों की कल्पना किया। No, नहीं, the Holy Spirit came. पवित्र आत्मा आया He moved upon different people और अलग अलग लोगों पर वह वास किया, and he revealed it to them, और उसने उसको बताया and they wrote. और उन्होंने लिखा। That is how Bible prophecy came. और उसी प्रकार बाइबल की भविष्यवाणी आई। Amen. आमीन। And और more than 2,000 prophecies have been fulfilled. और 2000 से भी ज्यादा भविष्यवाणी पूरी हो चुकी हैं। Some of these prophecies were given hundreds of years before. और कुछ ऐसी भविष्यवाणी थी जो 100 साल पहले दी जा चुकी थी, Some were given thousands of years before. और कुछ तो 1000 साल पहले दी जा चुकी थी। Some prophecies were almost impossible to be fulfilled, और कुछ ऐसी भविष्यवाणी थी जो बिल्कुल असंभव थी पूरी होने के लिए, and yet they were fulfilled. लेकिन फिर भी वे पूरी हुई। So the Bible is a very reliable book. और बाइबल एक ऐसा किताब है जिस पर आप निर्भर कर सकते हैं। The prophecies in the Bible are reliable. और जो भविष्यवाणी है बाइबल में वह निर्भर करने योग्य है। So look at some examples. आइए कुछ उदाहरण को देखेंगे। In page number 6. Think about the Egyptian slavery. और आप सोचिए जो मिस्र देश में जो दास गुलामी थी उसके बारे में, Egyptian slavery. और मिस्र देश के दासत्व के बारे में। God spoke to Abraham परमेश्वर ने अब्राहम से कहा in Genesis 15 verses 13 and 14. उत्पत्ति का 15 का 13 और 14 में। He told Abraham, उसने अब्राहम से कहा,
your descendants will be slaves in Egypt for 400 years. कि तुम्हारे वंश गुलामी में रहेंगे मिस्र देश में 400 साल तक के, And after that, I will bring them into this land और उसके बाद मैं उनको लाऊंगा इस देश में, and I'll give them this land. और फिर मैं यह देश उनको दूंगा। That was fulfilled. और वह पूरा हुआ। They were slaves for 400 years और वे गुलामी में थे 400 साल के in लिए Egypt. मिस्र देश में। After that, उसके बाद through Moses and Joshua, और मूसा और यहोशू के द्वारा God brought them out of Egypt और परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से निकाला and He brought them into the promised land. और फिर उनको वाचा के देश में लेकर आया। Amen. आमीन। It's fulfilled. ये पूरा हुआ। So today, if you go to Israel and ask those people about their history, अभी हम इजराइल जाएंगे और उन लोगों से पूछेंगे उनके इतिहास के बारे में, they'll tell the same thing. वे भी यही बात को बोलते हैं। Our forefathers were slaves in Egypt, हमारे पूर्वज जो थे वो मिस्र देश में वे गुलाम थे, but God had promised Abraham this land for us, और परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी इस भूमि के लिए, and we are here. और हम लोग यहाँ पर हैं। Amen. आमीन। So nobody can question. तो कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकता, It's fulfilled. कोई भी सवाल नहीं कर सकता, यह Think पूरा हो about गया है। another example. आइए दूसरा उदाहरण को देखेंगे। Both Isaiah, the prophets Isaiah and Jeremiah, both of them prophesied to the people of Israel और अज़ाया और यिर्मयाह दोनों ने यह भविष्यवाणी की थी इज़राइल के लोगों के लिए that the king from the north, Nebuchadnezzar, would come and attack them and take them into captivity for 70 years. और जो उत्तर से जो राजा लोग आएंगे वह उनको पकड़ेंगे, बंदी बनाएंगे और उनको गुलाम बनाएंगे 70 साल के लिए। And then after 70 years, God will bring you back. और फिर 70 साल के बाद परमेश्वर तुमको वापस लेके आएगा। And that happens. और वह हुआ। History records it. और इतिहास में उसका लेखा है। The Jews, the people of Israel, were brought into captivity here. After 70 years, they went back. और जो यहूदी थे 70 साल के लिए गुलामी में लेके आए, 70 साल के बाद वो फिर चले गए। But Isaiah prophesied. लेकिन यशायाह ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी, It is going to happen. यह होने वाला है, And then it happened. और यह हुआ। What is even more amazing is, और जो इससे भी ज्यादा अद्भुत बात है यह है कि point number 3, तीसरा जो पॉइंट है 150 years, 150 years 150 साल before a man was born, एक मनुष्य के पैदा होने से पहले Isaiah यशायाह prophesied उसने भविष्यवाणी कर दी by name. नाम से। He said, Cyrus, उसने कहा साइरस, God will raise you up परमेश्वर तुमको उठाएगा and you will send the people back. और तुम उन लोगों को वापस भेजोगे। 150 years before he gave the name. और of the king. 150 साल पहले उसने उस नाम को दे दिया था। You see that in Isaiah 44:28 आप उसको देखते हैं इज़ाया 44 के 28 में, and also in Isaiah 45 verse 1. और आप देखते हैं उसको इज़ाया 45 के 1 में। Isaiah is mentioning by name Cyrus. और यशायाह नाम से पुकार रहा है और कह रहा है साइरस। That time Cyrus was not born. और उस समय साइरस का जन्म नहीं हुआ था। There was the Persian kingdom was not in power. और जो पारस का जो राज्य था वह शक्ति में नहीं था। But 150 years before he said. और 150 साल पहले उसने कह दिया। Then what happened? उसके बाद क्या हुआ? The Babylonian king Nebuchadnezzar, और जो बाबुल का राजा था नेबुकदनेस्सर, he came and attacked Israel. और उसने इजराइल के आकर उस पर आक्रमण किया। He took many of them as captives to Babylon. और बाबुलोन में बहुतों को गुलाम बनाकर ले गया। Then when his grandson became king, और जब उसका पोता राजा बना Belshazzar, बेलशस्सर, he was overthrown by the Medes and Persians. और उनको मीस और पर्शियन के द्वारा हराया गया था। And the first Persian king was Cyrus. और पहला पारस का जो राजा था वह था साइरस। And Cyrus told the Jews, you can go back to your land. और साइरस ने
यहूदियों को कहा कि तुम अपने देश में वापस जा सकते हो। So exactly how Isaiah prophesied, और जिस प्रकार एकदम हूबहू या ठीक जिस प्रकार यशायाह ने भविष्यवाणी की थी 150 years before, 150 साल पहले it happens. वो हुआ। Amen. आमीन। It's all there. We can see it. It's और all there in scripture. ये सब उपलब्ध है, ये सब देख सकते हैं हम अपने धर्मशास्त्र में। Number 4, और चौथा, 483 years for Christ's coming. मसीह के आगमन के लिए 483 वर्ष। The book of Daniel is an amazing book. और दानियल की किताब एक अद्भुत किताब है। I'll see if we will have time to explain it. I don't know, but God had given Daniel some amazing prophecies. हम देखेंगे कि अगर हमको समय मिलेगा तो आपको समझाएंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने दानियल को बहुत अद्भुत भविष्यवाणियां दी थी। In Daniel chapter 9, और दानियल के 9वें अध्याय में the angel Gabriel comes to Daniel और जो दूत गिब्राइल है वो दानियल के पास आता है and he says, Daniel, I have come to talk to you about your city and about your people. और कहता है कि दानियल दूत आकर कि मैं तुम्हारे लिए पास आया हूँ इस शहर के लोगों के लिए और तुम्हारे लिए बात करने के लिए। And we're just going to read part of this. और इसका कुछ भाग हम पढ़ेंगे। This is Daniel chapter 9, verses 25 and 26. हम देखेंगे दानियल का 9वां अध्याय 25 और 26 वचन। Can somebody read that? क्या कोई पढ़ सकता है इसे? इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। So, excuse me. So the angel said, Daniel, I'm going to speak to you about 70 weeks. और दानियल ने कहा कि जो दूत ने कहा दानियल से कि दानियल मैं तुम्हें 70 सप्ताह के बारे में बात करने वाला हूँ तुमसे। Okay, how many weeks? कितने सप्ताह? 70. 70 सप्ताह। Now, in the Bible, the term week, 1 week, actually implies 7 years. और बाइबल में एक सप्ताह वह 7 साल के बराबर है। For example, उदाहरण के रूप में if you go to Genesis, अगर आप जाते हैं उत्पत्ति के, let me give you the exact. मुझे आपको एक उदाहरण देने दीजिए। I think it's Genesis 29. यह है उत्पत्ति के 29वें अध्याय के। Okay. Genesis 29. उत्पत्ति 29। Let us read verses 26 to 28. आइए पढ़ेंगे 26 से 28 वचन तक। Genesis 29, 26 to 28. उत्पत्ति 29, 26 से 28। लबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताहों को पूरा किया। तब लबान ने उस अपनी बेटी राहेल भी दे दी कि वह उसकी पत्नी हो। लबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपने दासी बिल्हा को दिया। Okay. I don't know how it reads in the Hindi, but in English, Laban says, fulfill her week. और
हिंदी में कैसे ये सुनाई देता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंग्लिश में कहता है कि लावेन ने कहा कि इसका सप्ताह पूरा होने दो। But what did he mean by saying fulfill her week? और उसका क्या मतलब था जब यह कहा कि इसके सप्ताह को पूरा करो? It means you have to serve for 7 years. इसका मतलब है कि आपको सेवा करना पड़ेगा 7 साल तक। How does it say in Hindi, Pastor? Fulfill her week? Or what does it say? Verse उसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर 7 वर्ष तक करेगा। 7 years. Yeah. So notice in verse 27, he says, fulfill her week. तो आप देखिएगा 27 वचन में कहा है कि इसका सप्ताह पूरा कर। And then what does that mean? उसका मतलब क्या है? End of that verse, he says, another 7 years. कि 7 वर्ष तक। So in Bible language, a week represents 7 years. और बाइबल के भाषा में एक सप्ताह 7 वर्ष को दिखाता है। समझ में आ गया? You understood? Now go to Daniel chapter 9, which we just read. और जाइए दानियल के अध्याय 9 में, जिसको हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। The angel came and said, I'm going to speak to you about 70 weeks. और स्वर्गदूत आए और कहा कि मैं तुमसे बात करने जा रहा हूँ 70 साल तक। 70 weeks. So 70 times 7 is how many years? 70 सप्ताह मतलब 70 गुणे 7 कितने साल? 490 years. 490 साल। Okay. ठीक है? 70 weeks is Sat- equal to 490 years. 70 सप्ताह जो 490 साल के बराबर है। All right. ठीक है? So the angel Gabriel is saying, तो जो दूत गिब्राइल कह रहा है 7 plus 62 weeks. 7 प्लस 62 जोड़ 62 सप्ताह। 7 plus 62 is how many? 7 और को जोड़ेंगे 62 से कितना होगा? 69. 69। So what you see in Daniel 9:25. और उसको आप देखते हैं 9 Daniel 9:25. दानियल के 9वें अध्याय के 25 वचन में He says, from the time the commandment is issued तो to उस go समय से back to Jerusalem, उस समय से जब जो आज्ञा दी गई थी कि यरूशलेम में वापस जाने के लिए, until the time of the Messiah, मसाया के आने के समय तक is 7 plus 62, which is 69 weeks, which is 483 years. सो 7 जोड़ 62 जो 69 सप्ताह है, जो 490 साल हो गए। So, आ गया? So, calculation कर देना. हिसाब किताब आप कर लीजिएगा। 483 साल। So, angel came and told Daniel, और दूत आकर दानियल से कहा, from the time the commandment is given for people to go back to Jerusalem till the Messiah comes, it will be 483 years. और उस समय से जब लोगों को यरूशलेम में वापस जाने के लिए कहा जाएगा और मसीहा के आने का जो समय होगा, उस समय का अंतराल होगा 483 साल। So think about it. इसके बारे में आप सोचिए। Even before these things happened, और यह बात होने से पहले भी the angel told exactly how many years will take place till Jesus comes. और जो दूत थे उसने सही सही रीति से बता दिया था कितना साल लगेंगे यीशु के आने के लिए। And this happened. और ये हुआ। From the time King Cyrus, he told the Jews, you can go back to Jerusalem. और उस समय से जब साइरस राजा ने कहा यहूदियों को कि तुम यरूशलेम में वापस जा सकते हो, And till the time Jesus came, और उस समय तक जब यीशु आए 483 years. 483 वर्ष। Amen. आमीन। It's amazing यह बहुत अद्भुत बात है that such accurate prophecy
is given. कि कितना सटीक भविष्यवाणी दिया गया है। He said 7 plus 62 weeks. That means 483 years will go. तो उसने कहा कि 7 गुणे 62 सप्ताह यानी 483 वर्ष बीत जाएंगे। And then the Messiah will be cut off. That means he'll be crucified or killed for the sake of his people. और उसके बाद मसीहा को मार दिया जाएगा, मतलब उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा उसके लोगों के लिए। You're with me? आप मेरे साथ हैं? So it is amazing that such details, such even the number of years, everything is prophesied, is given, and then we look back and it's oh yeah, it happened like what the angel said. और हम जब देखते हैं पीछे मुड़ के तो हम कहते हैं कि नहीं, ये सच है, ये सटीक है कि जो भी दूत ने कहा था इस पूरे वर्ष के बारे में ये बिल्कुल सही है। What Daniel wrote is correct. और जो दानियेल ने लिखा था वो सही था। This is how it happens. और इसी प्रकार ये हुआ था। So the Bible is very accurate in its prophecy. तो बाइबल बहुत ही सटीक है उसकी भविष्यवाणी में। Amen. आमीन। Now, how many years are left? He said 490 years. उसने कहा कि 490 साल, 483 years has happened. 483 साल खत्म हो गए। How many years left? कितना साल बचा? 7 साल। 7 years. 7 years. So those 7 years are the years that God has kept for the end of time. तो वह 7 साल परमेश्वर ने रखा है अंत समय के लिए। From the time of Christ's death and resurrection till the beginning of the last 7 years is the church age. It's the time that we are in. और उस 483 साल और जो 7 साल जो बचा हुआ है उससे लेकर जो 7 साल का अंतराल है वह कलीसिया का युग है, जिस युग में हम लोग रह रहे हैं। The last 7 years, जो अंतिम 7 साल है, those are the 7 years of tribulation. और वह 7 साल रहेगा, वह महाक्लेश का साल रहेगा, That is yet to be fulfilled. जो अभी भी होने वाला है। Okay, ठीक है, you keep it in mind. We will come back to it. आप अपने मनों में रखिए इसे, हम वापस इसमें आएंगे। Alright. ठीक है। Number 5. 5वां नंबर, The prophecies concerning Jesus. मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां हुई थी। There are many prophecies concerning the Lord Jesus Christ. और बहुत सारे भविष्यवाणी है मसीह के लिए, मसीह प्रभु यीशु मसीह के लिए। And we have mentioned some of them here. और उनको कुछ को हम लोगों ने यहाँ पर बताया है। But the interesting thing is, तो और जो दिलचस्प बात यह है कि only one man सिर्फ एक व्यक्ति had to fulfill all these prophecies. ये सारे भविष्यवाणियों को पूरा करना था उसको। Only one man. सिर्फ एक व्यक्ति को। It almost seemed impossible. यह लगभग असंभव दिख पड़ता था। One man, एक व्यक्ति, he had to be born of a virgin. उसको कुंवारी से जन्मना था। He had to be born in Bethlehem. उसको बेथलेहम में जन्म लेना था। He had to come riding on a donkey to inside Jerusalem. और उसको गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करना था। He should. He was God. He had no beginning. He was God from everlasting to everlasting. वह सदा काल के लिए वह परमेश्वर था, उसका कोई सीमा नहीं था। He would grow up in Nazareth. और वह नाजरत शहर में बड़ा होगा। He would be betrayed by his own friend. और अपने दोस्त के द्वारा उसको पकड़वाया जाएगा। He will be crucified. वह उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। His clothes will be sold for 30 pieces of silver. और उसके कपड़े को चिट्ठियां डालकर बेची जाएगी 30 चांदी के सिक्कों के द्वारा। So many things. ये सारी बातें, It all had to be fulfilled by one man. ये सब को पूरा होना था सिर्फ एक व्यक्ति के साथ। All these details. ये सारे विस्तार की चीजों को। When he died, not one of his bones will be broken. और जब वो मरेगा तो उसका एक भी हड्डी नहीं टूटेगा। He will be buried in a rich man's grave. और वह एक धनी व्यक्ति के कब्र में गाड़ा जाएगा। All these had to be fulfilled. ये सबको पूरा होना था। It seemed impossible.
यह एकदम असंभव जान पड़ता था। How can one man fulfill all these things? कैसे एक व्यक्ति इस सारे योजनाओं को पूरा कर सकता है? But then there was one man. लेकिन तब वहां पर एक व्यक्ति था, He was God who became man, वह परमेश्वर जो मनुष्य बना, in whose life जिसके जीवन में all these things were fulfilled. ये सारी बातें पूरी हो गई, Only one man, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, and that is Jesus Christ. और वह है यीशु मसीह। Amen. आमीन। So what seemed impossible, तो जो असंभव जान पड़ता था, it was fulfilled. वह पूरा हो गया। We can check all the prophecies about Jesus. Yeah, fulfilled. हम देख सकते हैं सारे भविष्यवाणी यीशु के बारे में हाँ, ये पूरी हो गई In one man's life. एक व्यक्ति के जीवन से। So that is amazing. तो यह एकदम आश्चर्यचकित बात है। Amen. आमीन। A few other, two more we mentioned here. Number 6, और छठे बिंदु को देखेंगे। Jesus said, when Jesus was ministering, he said, this temple will be destroyed. और यीशु ने कहा कि इस जब वो सेवकाई कर रहे थे कि यह मंदिर को विनाश किया जाएगा। 40 years from then, that temple was destroyed. और 40 साल के बाद वह मंदिर का नाश कर दिया गया। The dispersion and regathering of Israel, और इजराइलियों का अलग होना और फिर से उनका वापस आना। God had foretold that परमे- his people will be dispersed or scattered everywhere. और परमेश्वर ने कहा था कि इजराइलियों को का तितर बितर होगा और वह अलग अलग रहेंगे। Then he said, I will bring them from all the nations और उन्होंने कहा कि मैं पुनः सबको एकत्र करूंगा अलग अलग राज्यों से, and I'll establish them in this land. और इस जगह में उसको स्थापित करूंगा। It took about 3,500 years. और इस क्षेत्र में इस भूमि पर उसको स्थापित करूंगा। यह लगभग 350,000 वर्ष लगे, But the prophecy was fulfilled. लेकिन वह जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हुई। Today there is a nation called Israel. और आज एक राष्ट्र है जिसको कहते हैं इजराइल। 1948, 1948 में, before 1948, 1948 से पहले people didn't think there would be a nation called Israel. लोगों ने यह नहीं सोचा था कि एक देश भी होगा इजराइल के नाम से। Many of them were scattered in different parts of the world. और बहुत उनमें से बहुत से जो तितर बितर हो गए थे अलग संसार के अलग अलग जगहों में। Slowly they started moving back. और धीरे धीरे वे वापस आना शुरू किए। And then 1948 they became a nation. और 1948 में वह एक देश बन गए। And God's word was fulfilled. परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। Amen. आमीन। So like this, we can look at many prophecies in the Bible, और इसी प्रकार हम देख सकते हैं बहुत भविष्यवाणियों को जो बाइबल में है, and we can say these prophecies have been fulfilled. और हम कह सकते हैं कि यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। Therefore, we can trust all the other prophecies about things yet to come. इसीलिए हम विश्वास कर सकते हैं उन सारे भविष्यवाणियों को जो अभी होने वाली है। Amen. आमीन। So, what we want to do now तो अभी हम क्या करेंगे कि is we will read Matthew. Okay, that's a long passage. All right. I will give you a little assignment for today later on. All right. मैं कुछ बाद में आपको कुछ काम दूंगा। Where I want you to. So on page number 9 in the English notes, in the और Hindi notes, हिंदी में 10वें पन्ने पर there are two portions of scripture. यहाँ पर वचन के दो भाग हैं। Matthew 24, मत्ती 24 that's the full chapter, पूरा अध्याय, and Luke 21. और लूका 21। Okay. I want you to read both these chapters. मैं चाहता हूं कि आप दोनों अध्याय पाठों को पढ़ें।
later on, not now. अभी नहीं, बाद में। And we will explain how to look at that. और हम आपको सिखाएंगे और व्याख्या करेंगे कि कैसे उसको देखना चाहिए। But let's go now to chapter 3. तो अभी हम जाएंगे अध्याय 3 में। What we want to do हम क्या करना चाहते हैं कि is to get an overview हमको एक पूरा विचार बने about the sequence of events, तो जो घटना का क्रम है उसके बारे में, of how things are going to unfold. कैसे कैसे चीजें होती रहेंगी। Now, I do want to say that different people have different understanding about the end times. देखिए, अंत समय के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलग अलग लोगों का अलग अलग समझ है। But what I'm about to share with you is, of course, I personally believe in this order of events, और जो घटना का क्रम है उस पर मैं व्यक्तिगत रूप से मैं विश्वास करता हूँ। and I will also explain why we say that this is the sequence in which the events would happen. और हम कैसे कह सकते हैं कि यह क्रम होगा जहाँ पे इस क्रम अनुसार ये घटनाएं होंगी। So let's read Acts chapter 1 verses 6 to 12, please. आइए पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 16 अध्याय एक पहला अध्याय 6 से लेके 12 तक कृपया। Acts 1 6 to 12. प्रेरितों के काम पहला अध्याय 6 से 12। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उन्हें उस स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को That's लौटेंगे। fine. Oh, sorry. जी, पढ़िए। खत्म कर दे 12 तक हो गया हो गया। जी, हो गया। Okay. Sorry. माफ कीजिए. I don't know who was reading. Okay. All right. So what did the angel say? तो यहाँ पे सरदूत ने क्या कहा? The same Jesus वही यीशु who you saw go into heaven, जिसको तुमने स्वर्ग में जाते देखा, he will come again. वह वापस आएगा। In the same way you saw him go. उसी प्रकार जिस प्रकार तुमने उसे जाते देखा। So when he ascended, और जब वह स्वर्ग में गया, from where did he ascend? तो कहाँ से वह स्वर्ग में गया? कहाँ से? बेंगलुरु से, दिल्ली से? बंगलोर से, दिल्ली से गया? कहाँ से गया? पहाड़ का नाम क्या था? जैतून का पहाड़। जैतून का पहाड़। What is that? माउंटेन ऑफ ऑलिव। Olives. Okay, correct. So he went up from the Mount of Olives, और वह जैतून के पहाड़ से गया, little outside Jerusalem. थोड़ा सा बाहरी भाग यरूशलेम से He ascended. वह स्वर्ग पर चढ़ाया गया। When Jesus comes, जब यीशु आएंगे he will land in that same place. और वह उसी जगह पे वह लैंड करेंगे, वह उतरेंगे। Now, the prophet Zechariah, और जो भविष्यवक्ता जकरिया थे, if you go to the Old Testament book, Zechariah, और अगर आप जकरिया की किताब में जाएंगे पुराने नियम में, he prophesied. उसने भविष्यवाणी की। I'll give you the exact verse. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। Zechariah, जकरिया verse chapter 14, उसका 14 अध्याय
and verses 3 and 4. उसका तीसरा और चौथा वचन। Now, just think about this. आप सिर्फ इसके बारे में सोचिए। Zechariah is prophesying. देखिए जकरिया भविष्यवाणी कर रहे हैं। Book of Acts has not yet happened. देखिए प्रेरितों के काम का जो किताब है अभी तक नहीं हुआ है, Jesus has not yet, this is before Jesus coming. और यह यीशु के आने से पहले ही हुआ है। What is Zechariah prophesying? तो जकरिया क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? Please, I know bell rang. मैं जानता Zechariah हूँ घंटी 14, बज गई 4 है, and 5. लेकिन आप पढ़िए उससे 3 and 4, yes. 3 और 4। तभी यहोवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। What did Zechariah prophesy? देखिए ये जकरिया ने क्या भविष्यवाणी की थी? On that day, उस दिन the Lord will fight. और यहोवा लड़ेगा। His feet will come on the Mount of Olives. और वे आएंगे जैतून के पहाड़ पर। Amen. आमीन। This happened even before Jesus went. He talked about landing. या यीशु के जाने से पहले ही उनको उतरने की बात कर दिया। This is where he will land. या जहाँ पे वह उतरेंगे। Then in Acts, he goes from there. और वह देखते हैं फिर तो काम है कि वहां से जाता है। And the angel says, the same Jesus, in the same way he went, he will also return. और दूत कहता है कि वही यीशु जिस प्रकार वह गया था उसी प्रकार वह उतरेगा। Amen. आमीन। All right, we'll take a break. ठीक है, हम लोग ब्रेक लेंगे, आएंगे।